Today is the lecture 2, and in lecture 1 we discuss basically what is microprocessor, what are the difference between the microprocessor, microcontroller and microcomputers. In the lecture 1 में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, माइक्रोप्रोसेसर के बारे में जाना, what is the difference between the micro and processors, and you studied in the 1960 the processors come after the 10 years, the micro will come, and the micro is a very great revolutions in the electronics world. So in it is a understanding between the micro and processor, and then we will be understanding about the memory and what do you mean by programmable device, the statement of the microprocessors आपने देखा in lecture 1. lecture 1 के बाद हम लोग आज देखेंगे lecture 2 में what is the microprocessor के अंदर क्या क्या होता है, internal part of the internal structure of the microprocessor, and slowly we will be start the 8085 microprocessors. Now today our lecture 2 is basically is a the internal structure of the microprocessor, and this is a microprocessor based system, and you see that this is your microprocessor, and this is your microprocessor, and the microprocessor we will connect, this is the input inside the microprocessor, and this you see in this memory, the memory is the bidirectional symbol. In there is an one symbol when the microprocessor's value will enter, and there is an one arrow will define the when the information will get to the microprocessor. इस केस में आप देख रहे होंगे कि एक में माइक्रोप्रोसेसर से वैल्यूज ट्रांसफ़र हो रहा है मेमोरी में, और एक मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड देयर इज़ एन आउटपुट. तो माइक्रोप्रोसेसर, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. तो जो आप इनपुट दे रहे हैं, दिस इज़ द आउटर वर्ल्ड. आउटर वर्ल्ड से जो इनपुट हम लोग लेते हैं, that inputs will that instruction will goes to the memory, and according to the instructions, either according to the instruction, then memory will be send the respective informations, and after the microprocessor will doing work, either it will be transmit to the outside of the world, या either it will be received by the memory. For example, अगर आप इस तरह समझें कि जैसे we say that if you apply the input pen drive, आपने एक पेन ड्राइव लगाया इन द CPU, आपने CPU में पेन ड्राइव लगाया, तो देयर इज इन टू पर्पज ऑफ द CPU. either you say that there is an you apply the instruction to contain the information from the memory. आप मेमोरी से इंफॉर्मेशन को कंटेंट करके अगेन इट विल बी सेंड टू द आउटपुट ऑफ द वर्ल्ड. एक ये हो सकता है कि आपके मेमोरी में मान लीजिए कि देयर इज एन 2, एंड यहाँ पर दिस इज़ योर मेमोरी, और इसी मेमोरी में क्या हो रहा है कि आपका मान लीजिए कि म्यूज़िक्स है, मतलब गाने स्टोर हैं, आपने इस गाने को क्या किया कि स्टोर है, देयर विल बी ट्रांसमिट टू द वेयर, देयर इज एन ट्रांसमिट टू द आउटपुट साइड ऑफ द पेन ड्राइव. आपने क्या किया, आउटपुट वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर दिया. तो ये जो आपने आउटपुट वर्ल्ड में ट्रांसमिट किया, तो इनपुट दिया, माइक्रो प्रोसेसर ने रीड किया, इट विल बी सेंड टू द मेमोरी, एंड देन इट विल बी ट्रांसमिट टू द आउटपुट वर्ल्ड. देयर इज एन वन वे. एक कंडीशन ये हो सकता है कि इफ़ यू अप्लाई द इनपुट that will contain the information according to the instruction, or that information will transmit to the memory. अब आपने क्या किया कि suppose there is some informations are stored in your input, and that information will be stored in the memory. हम लोग करते हैं, काफ़ी पेन ड्राइव डाले, पेन ड्राइव में suppose your PPTs are present, या some informations or datas are present, and that data will, if you want to store in the memory, तो क्या करते हैं, that will be the copy and will be pasted in your memory. That will be the instruction we will be applied. तो हम जो कॉपी है, दिस इज द कॉपी इज द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. आपने कॉपी किया तो इट विल से दैट देयर इज इन अप्लाई इंस्ट्रक्शन. आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कॉपी, तो एक ऑटोमेटिक वो जनरेट करेगा पेस्ट. वेयर यू पेस्ट, आइदर इन द मेमोरी या इट विल बी इन द अदर डिवाइस, डिपेंड ऑन योर इंस्ट्रक्शन. तो दिस इज द बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, एंड इनसाइड दिस इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी. एंड यू वेयर आई सी, if you see, I delete all this thing, and you think this is your microprocessor. In microprocessor में क्या हो रहा है कि input, output and memory, these are externally connected, and this combined in a single chip, this is combined in a single chip. अगर ये सारे
एक सिंगल सिलिकॉन चिप में डिज़ाइन होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज योर माइक्रो कंट्रोलर. Okay, the difference between the microprocessor and microcontroller. Now, next slide. Inside the microprocessor, microprocessor के अंदर क्या क्या होते हैं? Internally the microprocessor is made up of 3 units. Microprocessor जो होते हैं, microprocessor के अंदर 3 important elements हैं, 3 important main elements हैं. That is, one is called your arithmetic and logic operation. Arithmetic and logic operation हम लोग discuss करेंगे. There is an 74 instructions are present in arithmetic and logical operation. Control units, that is the control unit to control. Suppose अभी just मैंने एक example बताया था कि आपने पेन ड्राइव डाला, पेन ड्राइव डालने के बाद आपने मेमोरी कुछ कॉपी करके मेमोरी में पेस्ट किया. इसका मतलब आपने मेमोरी में क्या किया? राइट ऑपरेशन किया. कभी आप मान लीजिए इफ़ यू ऑन योर CPU and you go to the memory and click the open the PDF and you read something. आप उस PDF को ओपन करते हैं और PDF को ओपन करने के बाद रीड करते हैं. there is an called as read operation. तो आपने क्या किया? एक रीड ऑपरेशन किया. तो ये कंट्रोल यूनिट पे कि आप किस तरह का ऑपरेशन करते हैं, रीड ऑपरेशन करेंगे, राइट ऑपरेशन करेंगे, इट ऑल दिस थिंग विल बी डिपेंड ऑन योर कंट्रोल यूनिट. एरे रजिस्टर फॉर होल्डिंग द डेटा व्हाइल इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड. एक एरे ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, आप हम लोग देखेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस के रजिस्टर. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स वी विल बी यूज्ड. तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, उस माइक्रो प्रोसेसर में 3 मेन यूनिट्स हैं. द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड एज योर ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, and the third one is called as array of register. So these 3 are the very important part of your microprocessor. ठीक. Now organizations of the micro that will be expand. जो हमने structure देखा उसको थोड़ा सा expansion picture में देखते हैं. तो this is your microprocessor. Inside the microprocessor there is an ALU, register array, and there is a control unit. These are the 3 main part of your microprocessor. And this is your input output device. These are the input output. This is called as outside of the world. ये हमारे microprocessor का outside the world से क्या information हम लेते हैं और क्या information हम transmit करते हैं. This is your memory, and in the memory this is called as ROM and RAM. ROM is called as your read only memory and RAM is called as random access memory. रोम इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये वॉलेटाइल नहीं होता है. एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ कॉल्ड एज योर वॉलेटाइल मेमोरी. ये डिस्कस करेंगे हम लोग. तो बेसिकली देखिए, दिस इज़ योर सिस्टम बस. व्हाट इज़ बस? बस क्या होता है? इट इज़ नथिंग कैन बी ए कोएक्सियल, इट इज़ नथिंग कैन बी योर केबल मल्टी, and that cable will be connected from one device to the another device. So that is called as your system bus. And system bus is nothing can be your for the media to transmit the information from one point to the another point. So this is the called as system bus. And all this microprocessor input output device and this memory are connected within system bus. Okay. Now next we discuss about the memory. Now memory stores information such an instruction and data in a binary format. It provides this information to the microprocessor whenever it is needed. So it is important that your memory will store only the binary number, either 0 या 1, depends on the information. हम कैसा information send करते. Just मैंने ये कहा कि एक information मैंने ये बताया कि जब हमने पेन ड्राइव डाला, हमने इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके मेमोरी में ट्रांसफ़र किया या मेमोरी से हम लोग ने, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंस्ट्रक्शन कि हम कैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है या इसको ट्रांसमिट करता है. यूजुअली देयर इज़ ए मेमोरी सब सिस्टम इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड द सब सिस्टम्स इंक्लूड्स द रजिस्टर इनसाइड द मेमोरी दैट इज़ कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी, used to store the information and does not change, random access memory, read and write operations, and used to store the information supplied by the user and search the program and data. That is a very important point.
देखिए मेमोरी के अंदर हम लोग सब मेमोरी डिज़ाइन करते हैं और उस सब मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, डेट इज़ रोम एंड रैम। रोम जो होता है जब मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है, आपके भी आप लोग बहुत आप इसको देख सकते हैं, विजुलाइज भी अभी जस्ट मैं कराऊंगा। आप रोम को देखिए, जब मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है तो मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोग्रामिंग उसमें इनबिल्ड कर देता है, जैसे विंडोज़ उसने इनबिल्ड कर दिया। कुछ आप जो इंस्ट्रक्शन आप दीजिएगा डेट ऑलरेडी इन द इनबिल्ड, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर लेने के लिए जाएंगे तो आप देखते होंगे, जैसे आप कंप्यूटर के लिए जाइए, कंप्यूटर को जस्ट ऑन कीजिए। जस्ट ऑन करने के बाद जो भी उसके अंदर इनबिल्ड है, ऑलरेडी इनबिल्ड है, सिस्टम ने अपना एक इनबिल्ड बना के दिया, मैन्युफैक्चरर ने एक अपना इनबिल्ड बनाया, वी कांट चेंज। तो वो जो होता है वो रोम में ऑलरेडी इंसर्ट होता है, ठीक है। सपोज इन योर मेमोरी, अगर आपके मेमोरी में जो पार्ट ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड है, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके मेमोरीज में इनबिल्ड है कि आपको हाथ कैसे हैंड करना है, कब आपको लेग करना है, ये ऑलरेडी आपके ब्रेन में इनबिल्ड है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। पैर चलाना है तो कैसे चलेगा, हाथ का मूवमेंट करना है तो कैसे करना है, वी कांट इरेज इट, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिंगर को रोटेट करना है तो ये आपको कोई बताया नहीं कि फिंगर रोटेट कैसे होगा, लेग चलना कैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके मेमोरी में स्टोर्ड है। तो दैट इज़ द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर जब वो डिज़ाइन करता है तो ऑलरेडी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस उसे देने हैं, जो प्रोसेसिंग करना है, जो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, इट इज़ ऑलरेडी इनबिल्ड इन द रोम। रोम में वो इनबिल्ड करते हैं और रोम की वैल्यू को वी कांट चेंज, हम उसे चेंज नहीं करते। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में वो बताता है कि ऑलरेडी आपका ये जो एंड्रॉयड फ़ोन में ये चीज़, ये फीचर्स, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर ऑलरेडी आपको कंपनी ऑलरेडी इनबिल्ड करके दे रही है, आपको ये सब पार्ट इनबिल्ड नहीं करना है। तो इट मीन्स दैट द प्रोग्रामर इज ऑलरेडी सेट इन योर फोन, ओके, एंड द सम डिफरेंट प्रोसेसर्स आर ऑलरेडी इनबिल्ड। तो क्या होता है कि इस केस में जो रोम में होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन, जो माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके इंस्ट्रक्शन जो आप माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, इट इज़ ऑलरेडी इनबिल्ड, इट इज़ ऑलरेडी इनबिल्ड इन योर रोम, बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड। अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग लिखेंगे और माइक्रो प्रोसेसर कैसे समझेगा, जब तक वो मैन्युफैक्चर उसके प्रोग्रामिंग में पहले से सेट ना कर दे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, देन ही अंडरस्टैंड, अदरवाइज ही कांट अंडरस्टैंड। तो दैट प्रोग्रामिंग इज स्टोर्ड इन द रोम। अब हम रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी योर नॉर्मल मेमोरी, जो आप जनरल पर्पस मेमोरी कहते हैं, वहाँ पर आप रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आप राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना प्रोग्राम को राइट अप कीजिएगा, दैट इंस्ट्रक्शन विल गोज टू द रोम एंड आस्क what is this meaning, and then it will be the proceed one by one. So this is the difference between the RAM and ROM. So ROM is read only memory and the RAM is random access memory. Now this is the memory map and address. The memory map is a picture represent of the address range and shows where the different memory chips are located within the address. This is the memory and you see this part. आप देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका मेमोरी लोकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 00000 से FFFF. This memory locations are represent in the hexadecimal. मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है, this is represented in the hexadecimal. हेक्साडेसिमल। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो हेक्साडेसिमल हो रहा है। और आप 0 to 3 EEPROM इज ए इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब है यहाँ इस प्रोग्राम को, जैसे मैंने रोम की बात अगर की है तो देखिए रोम, प्रोम, EEPROM और ई स्क्वायर प्रोम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है।
रोम की बात करते हैं, इन द रोम रीड ओनली मेमोरी वी कांट चेंज, इसमें हम जो प्रोग्रामर दे देगा वही इनबिल्ड रहेगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस केस में क्या होता है कि देयर इज एन वन चांस बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर द्वारा एक चांस दिया जाता है कि टू चेंज द प्रोग्राम बाय यूज़र, यूज़र अपने अकॉर्डिंग एक बार उस प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। ई प्रोम का मतलब ये है कि देयर इज इन इलेक्ट्रिकली इरेज, आप इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं, या अल्ट्रावायलेट रे से, सॉरी अल्ट्रावायलेट रे से भी इरेजेबल मेथड होता है टू इरेज द प्रोग्राम एंड देन इट विल बी इनबिल्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ई प्रोम एंड रोम। Now in this range, that is 0000 to 3FFF, in this range this programmer to inbuild the instruction, जो भी प्रोग्रामर, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर में एडअप करना है अकॉर्डिंग टू योर माइक्रो प्रोसेसर, वो यहाँ पर आपका इनबिल्ड कर देगा। बिटवीन दिस 3FF to 44000, इस एड्रेस पर जो आपका मेमोरी एड्रेस है 3FF to 44000, दिस एड्रेस डज नॉट कंटेन एनीथिंग, इस यह जो एड्रेस है कुछ भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस को एलोकेट करेंगे तो एड्रेस एरर बताने लगेगा, तो आपका जो आउटपुट है एरर डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा बिटवीन दिस रेंज 3FFFF to 4400। इन दिस रेंज योर एड्रेस विल शो द their output will show the error. Next is the address range. This is a RAM 1, RAM 2, RAM 3 and RAM 4, and again F7FF to FFF, this two, between these two range again there is a no informations are contained, इस रेंज में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी एलोकेशन हम लोग यहाँ पर एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बिटवीन दिस टू, बिटवीन 44400 to F7FF, these are the range of RAM. Here you will programming, you will store the information, program the information, data will stored, हम लोग सारा प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, here एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो हमने देखा, दिस इज द मेमोरी लोकेशन 0000F to FFFF, it is defined as a 64 किलो। क्यों 64 किलो है? FFFFF to FF, it is 2 to the power of 16। okay, 002 2 to the power of 16, that is 64 kilobyte of memory locations are present. This is the address range. Now next, memory. Memory, to execute a program, the user enters in its instruction in binary format into the memory. जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, there is in this I will say that the memory will contain the information in the binary form. जो मेमोरी है वो इन्फॉर्मेशन को जो कंटेन करता है वो बाइनरी के फॉर्म में करता है, द 0 या 1। द माइक्रोप्रोसेसर देन रीड्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड वट एवर द डेटा इज नीडेड फ्रॉम मेमोरी to execute the instruction and place the result either in memory and produce the output of the device. देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर रीड द इंस्ट्रक्शन दैट विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज, जो वह मशीन उस लैंग्वेज को समझता है, देन इट विल बी डिकोड्स, दैट डिकोड्स and it will needed and that instruction will goes to the memory, and after the memory according to the instruction either it will be stored in the memory या it will be goes outward to the memory. डिपेंड करता है कि जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या तो मेमोरी में स्टोर करना इंफॉर्मेशन या मेमोरी से या तो इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट डिस्प्ले कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। नो, there is in 3 cycles of instruction execution model. 3 important cycles हैं, जैसे the first cycle is called as your fetch, second is called as decode and the third is called as your executes. What do you mean by this?
To execute a program, the microprocessor reads each instruction from memory, interprets it and then executes it. Fetch का मतलब क्या होता है? If you write a some program, अगर आप कुछ भी एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, मान लीजिए कि आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं या C++ लैंग्वेज में लिखते हैं, दिस इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज C++ इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज. आप इसमें प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं, राइट अप करते हैं, बट मशीन कांट अंडरस्टैंड, मशीन उसे नहीं समझता है. मशीन क्या करता है, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज इन द अपने लैंग्वेज में उसको, दैट इज कॉल्ड एज योर मशीन लैंग्वेज. एंड आफ्टर द मशीन विल वर्क, आफ्टर वो मशीन उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उस प्रोग्राम को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट को जनरेट करता है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि सबसे पहला आपने जो एक इंस्ट्रक्शन लिखा, मान लीजिए आपने ऐड इंस्ट्रक्शन लिखा, ऐड बी, दिस इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऐड बी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा. जो रीड करने का, दिस इज जो माइक्रो प्रोसेसर ने जो रीड किया, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज योर फेच ऑपरेशन, उसको हम लोग कहते हैं फेच ऑपरेशन. द माइक्रो प्रोसेसर रीड द इंस्ट्रक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर फेच ऑपरेशन. आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वो इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया ऐड बी, देन इट डिकोड्स. अब क्या करेगा वो, क्योंकि ये तो आपका मैन जो ह्यूमन बीइंग जो अपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करता है उस फॉर्म में उन्होंने लिखी, बट मशीन कांट अंडरस्टैंड. तो मशीन क्या करेगा, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. तो मशीन जब उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो उसको कहते हैं हम लोग डिकोड्स. देन आफ्टर द रीड द इंस्ट्रक्शन, मशीन दैट लैंग्वेज विल डिकोड्स into the machine language, that the process is called as your decodes. After decoding the instruction, decode हो गया इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के डिकोड होने के बाद अब उसका जो इंस्ट्रक्शन, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग अब वो ऑपरेशन होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन, दैट एग्जीक्यूट्स द आउटपुट, आउटपुट आपका एग्जीक्यूट्स करेगा. डिपेंड ऑन द आउटपुट, कैसे आप आउटपुट, या तो एलईडी से जलता है, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट वो आउटपुट आपका डिस्प्ले करेगा. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, थ्री इंस्ट्रक्शन साइकिल्स of this execution model. One is called as fetch. Fetch is basically to read the instruction. After read the instruction, that converts to the machine language, that is called as decode. After decodes, it will be understanding the instruction, that process will work. जो process आपका instruction का है वो process चलता रहेगा. After completing the process, that is execute the output. These three are the very important point. Okay, तो यहाँ तक हो गया, चलते हैं फिर आगे. And this sequence is continue until all instructions are performed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन को रीड करते, इंटरप्रेटर असेंबल, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, वन बाय वन लाइन को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वन बाय वन लाइन को रीड किए, उसको फेच किए, फिर डिकोड किए, देन इट विल बी गो टू द एग्जीक्यूट, अगेन वी विल बी द फेच. ईच इंस्ट्रक्शन थ्री प्रोसेस विल हैपन, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. This process will continue up to the halt instruction. The one instruction is coming, जब हम लोग रीड करेंगे एक इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगा, that is called as halt instruction. halt इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, fetch decode execute, fetch decode execute प्रोसेस चलता रहेगा up to the instruction. if the microprocessor read the halt instruction, अगर माइक्रोप्रोसेसर ने रीड कर लिया halt instruction, it means that stop the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा and the program will be executed. ठीक है, तो ये थ्री प्रोसेस, fetch, decode and execute, every instruction, this three process will continue and reach up to the halt instruction. जब तक ये halt instruction तक रीड नहीं करता है, this process will continue happen. ठीक है. Next we discuss about the machine language. What do you mean by this machine language? There is an high level language, and we discuss about the assembly language, and that will be discuss about the machine language. अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, दैट इज C++ लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्रामिंग को राइट अप कर देते हैं तो क्या होता है,
माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट अंडरस्टैंड, माइक्रो प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो मशीन है वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज योर बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी को ही वो अंडरस्टैंडिंग करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज कन्वर्ट इनटू योर मशीन। जो मशीन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसमें वो कन्वर्ट कर लेता है, दैट इज योर मशीन लैंग्वेज। द नंबर ऑफ बीट्स दैट form the word of a microprocessor is fixed for that particular process. These bits define the maximum number of combinations. For example, 8-bit microprocessor, there is 256 combinations are possible. अगर आपके पास 8-bit microprocessor है तो 2 to the power 8, that is 256 different combinations are possible. 256 different combinations की मतलब ये है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, देयर इज 246 कॉम्बिनेशंस हम लोग यूज़ करेंगे। 246 कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास 74 इंस्ट्रक्शंस हैं, और उस 74 इंस्ट्रक्शंस का हम लोग 246 डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लिखते हैं एक इंस्ट्रक्शन, सपोज मान लीजिए मूव R1, R2, सपोज इन दिस वे, मूव R1, sorry, yes, sorry, it's a move R1, R2 अगर हम लिखते हैं, okay, and there is another instructions I will written as move R3, R4. If you change the first case, we said that move R1, R2, and you change the resistance register value R3, R4. So there is we said that there is this type of 246 patterns are generated, 246 different patterns. this 74 instructions से हम लोग 246 patterns को हम लोग यूज कर सकते हैं in 8-bit microprocessor. Okay, these are the meanings of these 8 different patterns. However, in the most microprocessor, not all of these combinations are used. Certain patterns are chosen and assigned a specific meaning. Each of these pattern forms the instructions of the microprocessors. Now 8085, this is a very important point. 8085 machine language जो आपको पढ़ना है, 8085 machine language. In 8085 from Intel, there is an 8-bit microprocessor. The 8085 uses total 246 bit patterns of the instruction set. तो total 8 bit है, that it is written as 2 to the power of 8. It is equal to 256. But we use the pattern only 246. 10 we cannot use. ठीक है, तो हम लोग 246 यूज़ करते हैं, 10 बिट्स आर नॉट यूज। तो 246 डिफरेंट पैटर्न्स का मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि देयर इज 74 इंस्ट्रक्शंस और मैंने एग्जांपल लिया मूव, तो A, B, सपोज मूव C, D, देयर इज डिफरेंट पैटर्न्स वी विल बी जनरेटेड। तो देयर इज 246 पैटर्न रिप्रेजेंट ओनली 74 इंस्ट्रक्शन। तो आपको 8085 में टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस यू कैन रीड। द रीजंस फॉर द डिफरेंस इज दैट some actually most instructions have multiple different formats. कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसके हम लोग मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, जैसे मूव R1, R2, मूव R3, R4, ऐड ऑफ B, ऐड ऑफ C। तो डिफरेंट वी विल बी पैटर्न्स आर यूज, कुछ इंस्ट्रक्शंस के होते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू इंटर द बीट पैटर्न करेक्टली एंड दे आर यूजली इंटर इन हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी। तो क्या होता है कि देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, जब
माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ था तो उस टाइम क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट में देते थे तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग बाइनरी के फॉर्म में देते थे, डायरेक्ट हम लोग मशीन लैंग्वेज के ही फॉर्मेट जनरेट कर देते थे। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट कि काफ़ी लंबे लंबे बीट्स को, लंबे लंबे वैल्यूज़ को अगर हम लिखना स्टार्ट कर दें इन द बाइनरी के फॉर्म में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट और देयर इज़ एन चांस फॉर द इनकरेक्ट होने का चांसेस काफ़ी होता था, काफ़ी गलती होने के चांसेस होते थे। तो हम लोग ने क्या किया कि जो हम लोग इंटर करते हैं वो हम लोग हेक्साडेसिमल के फॉर्म में इंटर करते हैं। तो हेक्साडेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल दिस बाइनरी नंबर 0011 1100 इज ट्रांसलेट इनटू द इंक्रीमेंट द नंबर in the register and it is an accumulator is usually entered as 3C and you say that this is the 3 and hexadecimal में हम लोग जानते हैं कि बाइनरी के 4 बीट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 और 4 बीट का कॉम्बिनेशन बनाए, इट इज़ 3 एंड दिस इज C, दिस इज रिप्रेजेंट एज ए 3C। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है एंड इट इज़ इन द रजिस्टर कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है आपका एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है और जिसका इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है इंक्रीमेंट बाय 1, इट इज़ एन इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट भी होगा, हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट में जब आएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट्स, व्हाट डू मीन बाय इंक्रीमेंट्स एंड व्हाट डू मीन बाय डिक्रीमेंट्स। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। व्हाट डू मीन बाय दिस असेंबली लैंग्वेज? जो भी हम प्रोग्रामिंग रीड करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग राइट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, उसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। C++ जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और एक आपका होता है मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली आपका जो असेंबली लैंग्वेज होता है इट इज़ द बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज के बीच का पार्ट है, लाइक ए सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के मिडिल का पार्ट। Like an assembly language is same, it is the between the high level language your C and C++ and the machine language, between this we will written as an assembly language। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग जो लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में? असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग देते हैं इन द हेक्साडेसिमल्स, entering the instructions using hexadecimal is quite easier than entering in the binary combination। जस्ट अभी मैंने बताया कि बाइनरी कॉम्बिनेशंस में देना डिफ़िकल्ट है। जब हम लोग एक लॉन्ग बीट की बात करते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो इसलिए हम लोग हेक्साडेसिमल में प्रिफर्ड करते हैं। However, it is difficult to understand what the program written in hexadecimal does. So each company defined as a symbolic code for the instruction। तो हर कंपनी जो है जो भी माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करती है तो ऐसा नहीं कि सबका सिंबॉलिक कोड एक ही होता है। तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर किट पर काम कभी करेंगे या माइक्रो प्रोसेसर कभी आप देखेंगे तो जब माइक्रो प्रोसेसर का आप किट खरीदने के लिए जाइएगा तो वो कंपनी क्या करता है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का मेनोमिक्स गिवन कर देता है आपको, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का आपको ऑपकोड गिवन कर देगा कि इसका ऑपकोड क्या है, इसका ऑपकोड क्या है, इसका ऑपकोड क्या है। हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना सिंबॉलिक कोड होता है कि भाई अगर आप मूव A, B कर रहे हैं तो इसका कोड ये होगा। मूव अगर आप मान लीजिए MVI इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका कोड ये होगा। अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका कोड हो ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो भी माइक्रो प्रोसेसर कंपनियाँ होंगी जो डिज़ाइन करती हैं, तो वो अपना एक सिंबॉलिक कोड, जब भी आप किट लेने जाएंगे तो सिंबॉलिक कोड आपको गिवन कर देगी कि ये आपका सिंबॉलिक कोड है और इस सिंबॉलिक कोड के अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे अभी जस्ट मैंने ये आपको बताया था मेमोरी लोकेशंस कि यहाँ से यहाँ तक आपका EEPROM है, यहाँ से यहाँ तक रैम है, वो भी आपको उस जो मैन्युफैक्चरर है वो भी आपको बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक का मेमोरी लोकेशन को आप यूज़ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का मेमोरी लोकेशन वी कैन नॉट बी यूज़। तो अगर आप मान लिया जाए कि आपको पता ही नहीं हो कि कौन सा कहाँ से कहाँ मेमोरी लोकेशन है, इसका क्या मेमोरी लोकेशन ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है मैन्युफैक्चरर आपको, जब आप किट लेने जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर किट, एट द टाइम दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड, आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन, हर कोड का एक सिंबॉलिक कोड्स होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज मेनोमिक्स। उसको हम लोग कहते हैं मेनोमिक्स। मेनोमिक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड B,
इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एन ऐड ए प्लस बी and the information will goes to A। इसका मतलब यही हुआ कि A और B और information will goes to the A रजिस्टर। तो ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया कि हमें करना क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस, हमें क्या ऑपरेशन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेशन क्या है। तो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या ऑपरेशन करना है, डेट इज योर मेनोमिक्स, उसे हम लोग कहते हैं मेनोमिक्स। ओके, that code is called as menomics. The menomics for each instruction is usually a group of letter that suggest a operation performed। तो मतलब अगर हम मान लिया जाए कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप कंप्यूटर पर देखिएगा लैपटॉप में अपने सब्ट्रैक्ट लिखे, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी, तो क्या होगा, इट विल बी अंडरस्टैंड दैट कि दिस ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्ट। तो आपको ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज योर मेनोमिक्स। ओके, okay, now next we discuss in the assembly language. In the assembly language, using the same example from before, suppose this is from 00111100, it is translated in 3C as an hexadecimal, we consider as 4 digit, and that is 3C in the hexadecimal opcode, and this is the, it is an menomics is INRA. This is increment, IN stand for increment, R stand for register. Increment of register A is a special purpose register, this is called as accumulator. Increment of the register A, this instruction, इसका मतलब आपको कैसा ऑपरेशन करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन करना है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन करना है तो दिस इज कॉल्ड एज योर मेनोमिक्स। तो हम लोग इसको कहते हैं मेनोमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपकोड? जस्ट आपको अभी जस्ट बताया गया था कि हर इंस्ट्रक्शन, हर जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको एक सिंबॉलिक कोड देगा, दैट सिंबॉलिक कोड इज योर ऑपकोड। मतलब ये हुआ कि इसका एक ऑपकोड होगा, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ INRA इसका एक ऑपकोड होगा। जैसे आप मान लीजिए कि INRA लिखे तो वह इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जैसे आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा एक इंस्ट्रक्शन दैट इज मेनोमिक्स लिखा, जस्ट उस इंस्ट्रक्शन का एक ऑपकोड जनरेट हो जाएगा ऑलरेडी। जैसे आपने उसमें लिखा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बनाया कि ये इंस्ट्रक्शन का ये ऑपकोड जनरेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसको देखिए, आप समझ जाएंगे बात को, और फिर आप बी राम को अगर रीड करेंगे तो बी राम में ऑलरेडी आपको ऑपकोड के बारे में सारा ऑपकोड लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड बी, ऐड बी इसका मतलब आपने कैसा इंफॉर्मेशन दिया, आपने इंफॉर्मेशन दिया है कि आप ऐड बी कर लें, ठीक है, ऐड बी। ये ऐड बी जो है एंड इट्स ऑपकोड इज 80, इसका जो ऑपकोड है वो 80 है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, कोड का ऑपरेशन करना, ऑपकोड का मतलब हुआ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, उस कोड का ऑपरेशन करना। और ऐड बी का जो ऑपकोड होगा दैट इज डिफाइंड एज योर 80। ओके, दिस आर द मीनिंग ऑफ दिस ऑपकोड, ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, ठीक है। एंड दिस ऐड बी, it means that this add A plus B, add or register B to the accumulator A and keep the result in accumulator of A। इसका मतलब ये है कि add A plus add register B and the output of the information A and B will goes to the accumulator of A। These are the operation of this add B। Okay, next we discuss about the assembly language। Assembly language, it is important remember that the machine language and it associate the assembly language are completely machine dependent। जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है वो कम्प्लीटली आपके मशीन लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चरर डिफाइन कर देता है कि कौन सा लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए कि कोई कन्वर्टर आप बनाए मान लीजिए, और वो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग करता है, वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है। आपने क्या किया, उस इंग्लिश के जगह पर चाइनीज़ वर्ड डाल दिया, तो इट विल बी कन्वर्ट टू द हिंदी, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जो उसका लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है
जिसको वो उसके मशीन में कन्वर्ट करता है उसका क्या है, वो इंग्लिश है। तो जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आपके मशीन लैंग्वेज पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मोटरेला हैज़ एन 8 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड एज 6800। The 8085 machine language is very different from of the 6800, so is the assembly language, and the program is written for the 8085 cannot be executed on 6800 and vice versa. Just we say that in 6800 this Motorola 6800 is also 8-bit microprocessor, and this is 8085 is also the 8-bit microprocessor, बट द प्रोग्रामिंग्स आर डिफरेंट। ऐसा नहीं कि अगर हम जो 8085 में जो प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इज सेम एज एन द 6800, सेम मशीन लैंग्वेज नहीं होगा। जस्ट बताया गया कि जो मैन्युफैक्चर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपकोड सिंबॉलिक कोड डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका असेंबलिंग डिज़ाइन होता है कि वो किस टूल पर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप जब कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपका वो लिखा रहता है कि ये विंडोज 7 के लिए है, ये ओनली विंडो 8 के लिए है, और ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 तीनों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिबिलिटी कि वो किस पर वो कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि वो सारे चीज़ पर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडो 7 के लिए होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडो 9 के लिए ही बने होते हैं। तो उसकी एक कंफर्टेबिलिटीज़ वो प्रोग्रामर या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर देता है कि ये किस प्लेटफॉर्म पर ये वर्क करेगा, ठीक है। Then the assembling the program. How does the assembling language to get the translate into the assembly language? There is a two-way hand assembling and assembler. Though two ways हैं, it will be said that for the converting from the assembly language to translate into the machine language. एक आपका है hand assembling. hand assembling का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम है उसको आप assembly language instruction is equivalent to the hexadecimal, then the hexadecimal code is entered into the memory. It means that hand assembling का मतलब ये है कि आप खुद सारा कुछ कन्वर्ट करें, मतलब आप देखें सिंबॉलिक कोड को देखें, वह सिंबॉलिक कोड जो है आपका डेट इज़ योर मेनोमिक्स, उस मेनोमिक्स का जो भी ऑप कोड है, जैसे मूव ऐड ऑफ बी का जो आपको मैन्युफैक्चरर ने गिवन किया कि इसका ऑप कोड आपका 80 है, तो वी विल रिटन एज एन डायरेक्टली 80। मतलब हैंड असेंबलिंग का मतलब ये है कि ह्यूमन और ऑल थिंग, वो मशीन लैंग्वेज में जो भी चीज़ कन्वर्ट होना है वो डायरेक्टली आप उसे इनपुट दीजिए, मतलब उसे ऑप कोड में आप ऑलरेडी कन्वर्ट करके दीजिए, देन इट विल बी ओनली टू द सेंड टू द मशीन। दिस इज़ फॉर हैंड असेंबलिंग। असेंबलर का मतलब ये है कि इफ़ यू राइट द प्रोग्राम, आप सी प्रोग्रामिंग लिख दिए या आप अपना असेंबलर में मूव ए कॉमा बी ऐड बी समथिंग ये सारा इंस्ट्रक्शन लिख दिए, वो ऑलरेडी अपना कन्वर्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द मशीन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली ऑप कोड उसका जनरेट करके कन्वर्ट कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज योर ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ठीक है। दिस आर द हैंड असेंबलिंग एंड द असेंबलर्स। If any problems in lecture 2, in the lecture 2 we discuss basically the microprocessor based system। microprocessor based system में हमने देखा कि microprocessors हैं, उसमें input और output डिवाइस एंड देयर इज एन मेमोरी जो देखा हमने बाई डायरेक्शनल देखा। फिर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर में हमने 3 मेन यूनिट्स देखे, वन इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, सेकेंड इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट्स एंड द थर्ड इज कॉल्ड एरे ऑफ रजिस्टर्स। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक पिक्चर्स को हमने एक्सपेंड किया जिसमें हम लोग ALU रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट्स देखे, इनपुट आउटपुट मैप देखे और मेमोरी रोम एंड रोम सिस्टम देखे। उसके बाद मेमोरी मैप एंड एड्रेस भी हमने देखा कि कहाँ पर, तो ये मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है कि इसलिए जब आप माइक्रो प्रोसेसर किट लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर आपको बता देगा कि किस मेमोरी लोकेशन में आपका रैम है, किस मेमोरी लोकेशन में रोम है और किस मेमोरी लोकेशन में आप कुछ भी एड्रेस दीजिएगा तो एड्रेस एरर आएगा। तो हम लोग ने मेमोरी मैप एंड एड्रेस भी देखा। उसके बाद हम लोग 3 साइकिल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखे, दिस इज कॉल्ड एज फेच यू अंडरस्टैंड दैट if you read the program by the microprocessor, this operation is called as your fetch. Decode, after reading the operation reading the program, it will convert to the machine language, that is called as decode.
after according to the instruction the program will be going on, and that will be after the execute the output, that is called as your execute operation. And after that we will understand about the 8085 machine language. The machine language says that there is a machine language basically to convert from the assembly language to the machine language, and the machine language understand only the binary numbers, either 0 and 1. And there is an 8-bit suppose microprocessor, it contains 256 different patterns, but in 8085 only 246 different patterns are there is an present, and 74 instructions are present. And you already you understand some what do you mean by assembly language. And assembly language is basically the between the high level language and machine level language में रहता है. और different microprocessor kit has a different assembly language, and there is a word is called as symbolic code, and different manufacturers has designed different symbolic codes and different opcodes. Opcode is basically each मेनोमिक्स हैज़ एन ओन कोड, एक हर मेनोमिक्स का एक अपना कोड होता है, that is called your op code. ठीक है, जिसको वो अंडरस्टैंड, जैसे हम इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ऐड बी, तो ऐड बी का एक अपना कोड जनरेट होता है और that will be sent to the instructions and that will be going on. तो दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. आई विल से दैट इनक्रिप्ट कर देता है उसे ऑपकोड के फॉर्म में, तो दैट इज योर ऑपकोड्स. एंड दिस इज द लेक्चर 2, and this thing we will be understand what is opcode, what is menomics, what is fetch, what is decodes and what is executes. These are the very important, and these things will come many times. ये चीज़ आपको काफ़ी बार आपको सुनने को मिलेगा. फेच ऑपरेशन हो रहा है, ऑपकोड ऑपरेशंस हो रहा है, आगे चल के आपको एक वर्ड आएगा ऑपरेंट ऑपरेशंस हो रहा है. तो ये चीज़ों को आपको जानना था जो आपने आज जाना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 8085 के 40 पिंस के बारे में, और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट को रीड करना स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.